Dear girls, the screen is visible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay. So today we will learn about journal proper. So what is a journal proper? We have already studied that any transaction which do not find place in any of the subsidiary books is written in a book which is known as journal proper. कोई भी वो ट्रांजेक्शन जो ना कैश बुक में आती हो, ना परचेज बुक में आती हो, ना सेल्स बुक में आती हो, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना सेल्स रिटर्न बुक में, ना बिल्स पेएबल बुक में, ना बिल्स रिसीवेबल बुक में, जो ट्रांजेक्शन इनमें से किसी भी सब्सिडरी बुक का हिस्सा नहीं बनती है, उसको हम एक अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर इज आल्सो नोन एज जनरल जर्नल. You must learn this. Journal proper's another name is general journal. It is a simple book of chronological record of business transactions. The use of this book is very much restricted in modern accounting system. Why this has been written here? The use of journal proper is restricted in modern accounting system. And nowadays, generally, the business houses, they do not maintain journal proper. Very restricted means its use is very less. In other words, to be more precise, the use of journal proper is very, very less. ठीक है बेटे, रिकॉर्डिंग हो रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Because I am not getting that. Yes, there is, हाँ, आइकन आ रहा है. ठीक है. तो एक तो सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल प्रॉपर का एक और कॉमन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल जर्नल. It is a journal, kind of a journal. That is why it is a book of chronological record of business transactions, but its use is very restricted. It means its use is limited because 90 to 95% of the transactions are like that, which are entered into other subsidiary books. So इसका use बहुत limited होता है. Only those transactions which cannot be conveniently recorded in any of the other books of original entry, that is in any of the other subsidiary books, or the transactions which are not sufficiently numerous to necessitate a special book being devised for them, the such transactions are recorded in this book. In which book? This book here means which book? journal proper. Journal proper. Yes. मैं आपको ना इसमें इसको हिंदी में भी बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है. Only those transactions, सिर्फ वो transactions जो किसी भी दूसरी सब्सिडरी बुक में नहीं कन्वीनियंटली रिकॉर्ड हो सकती, ठीक है, और जो which are not sufficiently numerous, या वो ट्रांजेक्शंस जो बहुत ज्यादा नहीं है एक साल के अंदर अंदर और जिनके लिए एक अलग से स्पेशल सब्सिडरी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी ट्रांजेक्शंस को हम जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्सिडरी बुक हमने अलग से स्पेशल बुक अगर बनानी है तो वो तभी बनेगी जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस लार्ज होंगी. अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर. सपोज द सेल्स रिटर्न्स of a business are on an average only 2 times a year. On an average, I'm talking about, right? Only 2 times. So why to maintain sales returns book for 2 transactions only? So in that case, the transactions are very less. They're not numerous. Numerous क्या होता है? बहुत ज़्यादा. Large in number. तो अगर किसी particular कॉन्सेप्ट से या आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हो तो उनके लिए भी अलग से बुक नहीं बनती. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो बिजनेस है उसकी सेल्स रिटर्न्स कम है, आप एग्जांपल ले सकते हो उसकी परचेज रिटर्न्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो क्या होगा? वो अलग से परचेज रिटर्न्स बुक नहीं बनाएगा,
वो सोचेगा एक या दो बार होता है साल में ऐसे, और कभी कभी तो होता भी नहीं है कि हम गुड्स को वापस करते हैं। ये जरूरी थोड़ा है कि हमेशा हमें गुड्स डिफेक्टिव ही मिलते हैं या सैंपल के अकॉर्डिंगली नहीं होते। तो क्या करते हैं उस केस में, अलग से परचेज रिटर्न्स बुक बनाने की क्या जरूरत है। वो एक ट्रांजैक्शन जो कभी कभी हो रही है उसको भी जर्नल प्रॉपर में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। देन ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। देखो बेटा कौन सी ट्रांजेक्शंस जर्नल प्रॉपर में आती हैं। ओपनिंग एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं ओपनिंग एंट्रीज के बारे में। These entries are needed for opening accounts in the beginning of the financial year, and these are all the opening balances of assets and liabilities. आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं हम। ट्रांसफर एंट्रीज ये भी पढ़ा था, याद करो जब मैंने टाइप्स ऑफ आपको Yes, ma'am. एंट्रीज करवाया था Journal जर्नल के चैप्टर में। Yes, याद? ma'am. हाँ, ये वही एंट्रीज हैं। These entries are needed to record transfer from one account to another account. For example, an asset purchased is wrongly debited to purchase account. So we have to rectify this mistake. तो हमें एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी जो होती हैं ये करवा दी है सिमरन मैम ने आपको। Yes, ma'am. हो रही है। जितनी Yes, भी बेटा ma'am. रेक्टिफिकेशन हो रही है। होती हैं वो भी जर्नल प्रॉपर में आते हैं। अब सोच के देखो ना, ये वो एंट्रीज हैं जो किसी और बुक में जा ही नहीं सकती। क्या एक रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो कैश बुक में जा सकती है? नहीं। सेल्स बुक में जा सकती है? नहीं, क्योंकि सेल्स बुक का तो एक दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए, वो भी गुड्स की। तो ये सारी वो एंट्रीज हैं जो किसी भी बुक में नहीं जाती। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। पता है आपको कि जो when accounts are closed at the end of a financial year, before preparing final accounts, certain adjustments have to be made relating to certain items like depreciation, outstanding expenses, interest on capital, etc. For example, if rent is outstanding for 1 month, suppose the amount is rupees 500, then the following entry will be passed. What would be the entry? Rent account debit to outstanding rent account. So this is another type of entry or a transaction which just cannot be recorded in any of the other subsidiary books. It will be recorded only in journal proper. Then is closing entries. ये साल accounting period के end में हम कुछ accounts को close कर देते हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए जो एंट्रीज की जाती है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं सारे आइटम्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, ये सारी आइटम्स कहाँ पे क्लोज हो जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। लाइकवाइज जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल आइटम्स हैं, वो कहाँ जाकर क्लोज हो जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितनी भी क्लोजिंग एंट्रीज हम करते हैं वो सारी की सारी किसमें की जाती है बेटा? जर्नल प्रॉपर में। कंपाउंड एंट्रीज, राइट, कंपाउंड एंट्रीज यू नो हमने ये भी पढ़ा था, ये वो एंट्रीज होती हैं जो एक ही डेट पर की जाती हैं और जिसमें से एक अकाउंट जो होता है वो कॉमन होता है ट्रांजैक्शन में। जैसे कि रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन 10th of January, तो 10th जनवरी को आप इकट्ठी एंट्री कर सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. अगर Yes, मैं ma'am. 10th जनवरी को रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड एंड गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तब क्या होगी बोलो? Rent purchases account to cash. Rent account debit, interest account debit, purchases account debit to cash account. कैश वही ना कंपाउंड एंट्री। तो इसमें एक अकाउंट कॉमन है, कौन सा? Cash account. Cash और account. डेट भी सेम है, और डेट भी सेम है, कौन सी? 10th January. राइट, 10th January. वेरी गुड, शाबाश। आप बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हो। तो ये बेटा ये वाली एंट्रीज तो कहीं किसी भी बुक में नहीं जा सकती हैं। ऐसी एंट्रीज को हम कहाँ लिखते हैं? दीज आर कंपाउंड एंट्रीज, so these will be recorded in journal proper. Casual entries
which do not occur so frequently, जो बार बार नहीं होती, जो मैंने अभी आपको समझाया था. पढ़ लो आप, इसमें वही लिखा हुआ है, पढ़ के देखो. Journal proper may also be used to record such transactions which do not occur so frequently, जो बहुत बहुत बार बार नहीं होती हैं, so that a separate book may not be needed for them. और इनके लिए एक अलग से सब्सिडरी बुक बनाने की जरूरत भी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, इफ सेल्स रिटर्न्स आर रेयर, अभी मैंने आपको परचेज रिटर्न का एग्जाम्पल दिया, सेल्स रिटर्न का भी हो सकता है. अगर सेल्स रिटर्न्स कभी कभी होती हैं, then instead of opening a sales returns book, such rare cases can be recorded in journal proper. ठीक है. अब एक बेटा हम इलस्ट्रेशन करेंगे जर्नल प्रॉपर की. This is an illustration, right? Pass necessary entries in journal proper for the following transactions. दिख रही हैं आपको transactions? Yes, ma'am. करो फिर कॉपी में करो. मैं अभी सुन, कॉपी में करो और आई एम गिविंग यू एक एक एंट्री करो और वी विल डिस्कस इट. ये नहीं कि हम 10 मिनट लगा दिए और उसमें जूम मीटिंग खत्म हो गई. पहली एंट्री करो और 1 मिनट में मैं अभी आपको पूछूंगी, किसी की भी टर्न आएगी. चलो बोलो. सिमरन आप बोलिए. First entry, हाँ बोलो. कैश अकाउंट डेबिट. cash account debited, stock account debited, debtors account debited, building account debited, to creditors account, to bills payable account, and to capital account. That will be the balancing figure, which is 2,20,000. शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड. कैपिटल अकाउंट बेटा सभी बच्चे आप सुन लीजिए, वैसे आपको आता है मुझे पता है. कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा ना. अगर दोनों का टोटल सेम नहीं आ रहा है, डेबिट टोटल करो सारे एसेट्स का, सारी लाइबिलिटीज का टोटल कीजिए. अगर ये सेम नहीं आ रहा है, तो अगर लाइबिलिटीज का टोटल कम आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? कैपिटल. और अगर लाइबिलिटीज का टोटल ज्यादा आ रहा हो और एसेट्स का कम, फिर तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल अकाउंट में जाएगी. Goodwill account. गुडविल. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. सेकंड, ट्रांसफर रुपीज 2000 फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ एक्स अकाउंट टू द क्रेडिट ऑफ वाई अकाउंट. दिव्या. Yes, ma'am. Ma'am, X account debited to Y account. हाँ ठीक है, शाबाश. थर्ड, रुपीज 400 रिपेयर्स टू फर्नीचर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाय मिस्टेक. ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, बोलो. रुको मैं देखती हूँ. मुझे देखने दो, मैंने किससे पूछना है. कविता आप बोलो. कविता शुक्ला. Ma'am. बोलो बेटे. रुपीज 400 repairs to furniture debited to furniture account by mistake. Ma'am, furniture account debit to cash account. You are telling me or you are asking me? ये गुरुदेव कौन है? यस मैम. हाँ बेटा बोलो. यस मैम. बोलो इसकी मैम इसकी एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. कितने अमाउंट से? मैम 400. बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सही है ये? No. हाँ जी बोलो. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. जो इसने बोला है कि गुरुदेव ने, ये एंट्री ठीक है? What Yes, I'm ma'am. asking. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. NCR repairs to. ठीक है, चलो. प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन. मैं अभी पूछती हूँ किसी से.
Ravya, roll number 99. Ravya. Roll number 99, Ravya, beta, बताओ. I don't think she is there with her phone or laptop. Ravya, this is just wastage of time. Hello, ma'am. हाँ जी. चलो शाइना आप बोलो, शाइना अरोड़ा. Depreciation on building account debited to building account. Building account 16,000. debit to building. Hello. Depreciation on building account debited to building account. अच्छा. ये तो बहुत सिंपल एंट्री है. नवदीप आप बोलो, रोल नंबर 28. बेटा डोंट वेस्ट टाइम, वी हैव 5 minutes only. Be quick. Depreciation account debited to building. मुझे ना क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, आंसर करना है मुझे. डोंट टेल मी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, आंसर मी ओनली. 16,000 amount ना. हाँ 16,000 ना. चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन. See this. See this. बेटे दिख रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, देखो फिर इसको. Yes, ma'am. Cash account, stock account, debtors, building to creditors to bills payable to capital, X account debit to Y being transferred, repairs account debit to furniture account being repairs wrongly debited to furniture now rectified, depreciation account debit to building being depreciation provided, rent account debit to outstanding rent account being rent unpaid. यही होना है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये है, दिस इज ऑल अबाउट जर्नल प्रॉपर एंड इट इज अ वेरी सिंपल थिंग जो एंट्रीज किसी और सब्सिडरी बुक में नहीं लिखी जाती बेटे, जो नहीं जा ही नहीं सकती हैं उनको हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं. और जो बहुत कम होती हैं ट्रांजैक्शंस व्हिच अकर वेरी रेयरली, those transactions are also entered into journal proper because for 1 or 2 transactions we just cannot maintain a separate subsidiary book. So all those transactions which do not find place in any of the subsidiary books or which are very, very less in number, they are entered into journal proper. Journal proper. Right. Journal हमने proper. आज ये पढ़ा है, दोबारा से एक बार आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं. बोलो बेटा, कौन कौन सी आती हैं? Opening, compound, rectification, transfer entries, adjustment entries, casual entries, compound. Right. Casual entries. हाँ, ये तो वैसे ही याद हो जाता है. ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन, देन एक और बीच में हमने Compound. यस, Adjustment, compound, Casual casual. entry. एंड लास्ट में कैजुअल. कैजुअल होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं कभी कभी, तो उसके लिए एक अलग से बेटा बुक मेंटेन करने की क्या जरूरत है, टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की, मनी वेस्ट करने की. वही चीजें जर्नल प्रॉपर में लिख दी जाती है. एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स. ऐसे मत बना लेना जैसे अभी मैंने क्लास में पूछा है तो बच्चों ने आंसर नहीं किया कुछ, तो ऐसी चीजें मत लिखना जो हमारे हाथ में है. सिंपल सिंपल सा के बनाओ आप इलस्ट्रेशंस अपनी. जो पेपर में आ गया वो तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. पर जो चीज हमारे हाथ में है, जहाँ पे भी मैं आपको कहती हूँ कि एक आपने इलस्ट्रेशन देनी ही देनी है, एक एग्जाम्पल देना ही देना है, तो वहाँ वो अपने आप ट्रांजेक्शंस देखो जो आपको इजीली लर्न होती है, ताकि नंबर कटने का कोई सवाल ही पैदा ना हो. किसी ने कोई कहा थोड़ी ना कि मुश्किल लिख के आओ और फिर वहां पे आपसे जर्नल एंट्री ही ना हो. व्हाई? जब खुद ही लर्न करना है, खुद ही एग्जाम्पल बनाना है, तो 4-5 एंट्रीज जो भी, जैसे जर्नल का सम अगर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज अ जर्नल, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज अ लेजर, तो बेटे खुद बनानी है ना इलस्ट्रेशन. या बुक में से कोई ऐसी लर्न करो जो आपको बिल्कुल फ्लो में आती हो, कोई रुकना भी ना पड़े, या खुद बना लो.
खुद बना लो 5 6 10 एंट्रीज इजी अपने आप बना लो ट्रांजेक्शन्स की। ये बहुत है, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गुड्स परचेज फॉर कैश, प्लांट एंड मशीनरी परचेज, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इजी बना लो। किसी ने कहा है आपको कि आप मुश्किल कीजिए? तो अपने आप बनाइए। अगर ये वाली लर्न करनी है बेशक ये वाली लर्न कीजिए, नहीं तो अपने आप बना लेना। पर इसमें सारा कुछ लाइक दिया हुआ है। एक ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल है, एक ट्रांसफर एंट्री है, एक रेक्टिफिकेशन है, आपने पढ़ा ना। तो इस तरह से जो चीजें हैं, ये एक प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन, ये कौन सी एंट्री थी, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? व्हाट एडजस्टमेंट एंट्री है ये, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ये सारी चीजें कवर कर रहा है, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो। इजी कर लो, अगर नहीं ज्यादा तो इन्हीं चीजों को लर्न कर लो जो जर्नल प्रॉपर में ही आनी चाहिए। वो वाली ट्रांजेक्शन है ये, कोई अपने आप थोड़ा ना बना लोगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. टाइम होने वाला है ओवर, Yes, ma'am. ठीक है ना। तो